Hello. Hello. Yeah, Namaskar, please. sir. Namaskar. Thank you for accepting our invitation to join in. We are live on Facebook, on IICSR and Digital Parliament pages. I would like to update you that this session of youth questions is being presented by Digital Parliament. It has been supported by ED Times, EGJA Foundation, and International Institute for Corporate Sustainability and Responsibility. Today we have with us a person who has had a journey from a lawyer to successful business person to five-time MLA from Malabar Hills and a new BJP president, Shri Mangal Prabhat Lodha ji. Sir, you have seen so many facets of life. So how has your experience been from Jodhpur, Rajasthan to Mumbai? Good evening. Thanks for inviting me. Will it be convenient if I speak in Hindi because I'm more comfortable if you don't mind? बिल्कुल सर. जोधपुर से मुंबई की ट्रैवलिंग बाई चांस ज़्यादा रही. I was a practicing advocate in Rajasthan, and then my father became a high court judge over there. And that time it was a practice that if father is a judge, son should not practice in the same high court. So destiny brings me to Mumbai, and in start I was doing a service. And Mumbai is a big city, big-hearted city. It gives chance to everyone. It has given chance to me also. And whatever I am today, I contribute more to the destiny and to the Mumbai city. My traveling was a tough traveling. I was having no base in Mumbai, but slowly, I got the ground. And after 5 years of doing a job for someone, I started my own business. To start with, it was a brokerage business of the flats, and then it was a supply business of a building material. And then I got a chance to enter into a partnership with someone who is owning a plot, and it has developed. But yes, I was having an interest in social life and politics right from the day one. I'm a RSS volunteer from my childhood. And my father was, before becoming a judge, he was a member of Legislative Assembly. So I was having inclination towards it. And so when I got a chance, I entered into politics. And as I've already said, the Mumbai is a big-hearted city. So they got me elected, and I was elected. This is my 6th term from the same constituency. My first election was with a margin of 800, and this time it was 98,000. So it is just by chance, and I always say that people have the X-ray machine in their eyes. If you are good, if you are acceptable to people, they support you. But if you are pretending to be good and you try to be smarter than others, then they judge you nicely and you don't get a second chance. Let us hope how long I can continue this journey. Thank you. सर, आपके पूरे करियर में आपका कौन गाइडिंग फोर्स था? आपने एबीवीपी बड़े कम उम्र में ज्वाइन किया, और अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में आपका गाइडिंग फोर्स कौन था, और कौन आपको पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए किसने आपकी सहायता की? जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैं बचपन से राष्ट्रीय सेवक संघ का स्वयंसेवक था, और मैंने स्टूडेंट लाइफ में मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद के अंदर था. वहाँ का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था. और जब जयप्रकाश नारायण जी का नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने उसको जोधपुर के अंदर ज्वाइन किया था, और वो मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत थी. वैसे
मैंने किसी एक व्यक्ति को अपना मेंटर समझकर उसको आज तक फॉलो नहीं किया, पर मैंने 2-3 लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुनी थी। जैसे एक ओनासिस ने कहा था, ओनासिस का नाम हमने सबने सुना होगा, जैकलिन कैनेडी के हस्बैंड, जॉन कैनेडी की विधवा के। और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी में लिखा है कि मैं बहुत बचपन में बहुत गरीब था, मेरे माताजी पिताजी के बीच में डाइवोर्स हो गया और मेरी मदर ने कहीं और शादी कर ली, आई वाज ऑर्फन। और मैं तब भी गाड़ियां धोकर कचरा साफ करके अपनी जिंदगी गुजारता था, पर मेरा एक प्रिंसिपल था कि जिंदगी में जो भी करो तो बेस्ट करो। तो मैं न्यूयॉर्क के जो बेस्ट स्ट्रीट की गाड़ियां होती थी वो जाकर धोता था, और महीने में मुझे एक बार ही ब्रेड चाय पीने का मौका मिलता था, पर अच्छे होटल में जाकर पीता था। तो ये जो उनका असूल था कि जिंदगी में जो करो बेस्ट करो, वो मुझे अच्छा लगा, मैंने फॉलो किया। और इसी तरह धीरूभाई अंबानी का भी एक असूल मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि इस देश में इतने कानून हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा एजुकेशन आपने ली हुई है, तो आपके लिए वो प्लस भी और आपके लिए माइनस है, क्योंकि आप रोड क्रॉस करते समय भी आपको 4 कानून याद आ जाएंगे कि मैंने इस कानून का उल्लंघन कर दिया, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्यादा कानूनों के बारे में मत सोचो और ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, दिल से सोचो, दिल से निर्णय करो। और दिल जब कोई बात आपसे करवाता है तो नॉर्मली वो बात गलत नहीं होती है। ऐसे मैंने लाइफ में मार खाने की बजाय जो सक्सेसफुल लोग थे उनकी लाइफ स्टोरी के कुछ कुछ एक एक 2-2 पॉइंट जो जो सामने आते गए वो सीखता गया, और जिस पे भरोसा है उसको फॉलो करता गया। बाकी डेस्टिनी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आपका पूरे फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो। आपकी लाइफ की ऐसी कोई स्टोरी आप बताइए हम सभी को जो बहुत कठिन और परेशानी वाली हो, जिसमें आपको पॉलिटिक्स में आप आए और उसमें आपने आगे बढ़े, वो कठिनाइयों को आपने पार किया। देखिए, मैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, आप सब इस देश के फ्यूचर हैं, और जिसने भी इस ऑर्गेनाइजेशन की सोच की शुरुआत की, कुछ लोगों ने, आप जैसे बच्चों ने मिलकर की होगी, मैं उनको मन से अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे जब हम किसी के प्रोग्राम में जाते हैं तो सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, पर मैं उससे एक कदम जाकर मन से आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि आज के समय में यूथ के मन में बैठा हुआ है, सबके मन में नहीं पर मेजोरिटी के मन में है, कि सब कुछ बनावट से चल रहा है। पॉलिटिशियन भी बनावट करते हैं, और अलग अलग फील्ड के अंदर जो लोग ज्यादा, मैं फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, और ओवर स्मार्ट जो हैं, जो कानून को, सरकार को, नियमों को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, वो बहुत आगे चोटी पे चले जाते हैं और वहां खड़े भी रह जाते हैं। बाकी लोग चले भी जाएं तो उनको नीचे उतरना पड़ता है। मैं जिंदगी के अंदर पॉलिटिक्स में आने का एक बड़ा कारण मेरे लिए ऐसा बन गया कि मैं जब साधारण तरीके से अपना जीवन जी रहा था नौकरी करके, तो मुझे बार बार अपमान का सामना करना पड़ता था। आई वॉज नो बडी हियर इन दिस बिग सिटी, और उस अपमान ने मेरे को और ज्यादा, मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा की टू बिकम समथिंग, और लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आरएसएस के संस्कार और पिताजी का पॉलिटिक्स में होना, पर वो चूंकि राजस्थान में थे, महाराष्ट्र से उसका कोई लेना देना नहीं था। मेरे अपनी बचपन से सोशल पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रहा है, और वही एक कारण है कि मैं पॉलिटिक्स में, जब मुझे मौका मिला 1995 के अंदर, मैं बाइकला में रहता था 94 तक। 95 में मैं शुरुआत में 94 के अंदर ही मैं मलबारी में रहने को आया, और मलबारी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इसके पहले कभी बीजेपी जीतती नहीं थी। सो कॉल बड़े बड़े बिजनेसमैन, और उनको नॉर्मली वो बीजेपी को वोट कम करते थे, और इसलिए हमको कैंडिडेट ही नहीं मिलता था। कभी हम लोग बोरीवली से कैंडिडेट लाए, कभी अहमदाबाद से कैंडिडेट लाए, कभी किसी को खड़ा किया। और इसलिए जब 95 का चुनाव आया, तो मैं उसके पहले राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था 92 में। उस आंदोलन में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक्टिव था, मैं अयोध्या गया था, और उस समय मेरा पॉलिटिकल टच मुंबई के अंदर बहुत बढ़ गया।
और उस समय उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये सीट जीतने वाले तो नहीं है, पर हमको किसी को तो खड़ा करना है, तो आप खड़े होंगे। और मैं खड़ा हो गया और चुनाव में 800 वोट से जीत गया। आगे की स्टोरी सबके सामने। थैंक यू। थैंक यू सर। आज के दौर में बम्बई का जो हाल है, एक बारिश की वजह से सब कुछ बंद है। बीएमसी इलेक्शंस अभी आ रहा है। क्या आपके दौर के अंदर हमारा बम्बई का मेयर होगा? और नहीं, बीजेपी को मुंबई में जिताने के लिए आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका लक्ष्य हर समय सिंहासन रहता है। और मुंबई के अंदर रहने वाले हर पॉलिटिकल वर्कर के मन में सिंहासन यदि कोई है तो वो मुंबई के मेयर का पद है। इसलिए हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या नेता सोचता है कि मेरा पार्टी का व्यक्ति उस सिंहासन पे बैठे। पर सोचने से सब कुछ होता नहीं है, और केवल प्लानिंग से भी सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, लोगों की आंखों में एक्सरे मशीन है, लोग सब जज कर लेते हैं, एक्सरे मशीन तुरंत रिजल्ट दे देती है। और ये जो लोगों की एक्सरे मशीन सोचने की है, ये 5 साल तक स्टोर करती रहती है और 5 साल के बाद एक दिन 5 साल का एक साथ में रिजल्ट देती है। 5 साल किसने क्या किया ये लोग तय करेंगे। और हम आशा करते हैं कि जब 2022 में चुनाव होंगे उस समय भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। धन्यवाद। सर, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, तो आपके फाउंडेशन के उसमें स्मार्ट सिटीज का काफी काम आप कर रहे हैं। तो आपके अनुसार स्मार्ट सिटीज ज्यादा उपयोगजनक है इंडिया में या स्मार्ट विलेजेस? थोड़ा मुझे लगता है या तो मुझे सुनने में कुछ चूक हुई है या आवाज कहीं टूट रही है। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? हेलो सर, मुंबई बीजे फ्लडेड है। आपके कोविड-19 सर एक सेकंड, बस एक नेटवर्क का इशू है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। हेलो सर, आपको मेरी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आने लगी है। ओके ओके। सर, बम्बई पूरी फ्लडेड है और कोविड-19 का भी समय चल रहा है। इसमें बीजेपी के काफी सारे कार्यकर्ता बम्बई के स्ट्रीट पे काम करते हुए नजर आए। आप लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं लोगों को बचाने के लिए, और फ्लड से भी आज जो इतना बड़ा फ्लड आया है उससे भी लड़ने के लिए? नहीं, जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो सब मुंबईकरों को मालूम है कि शुरू के 2 महीने में सरकार या महानगर पालिका कहीं नहीं दिख रही थी। उस समय मुंबई को भाजपा ने और संघ परिवार ने संभाला। हमारे लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से लेके भोजन पहुंचाने की व्यवस्था से लेके कच्चा अनाज पहुंचाने की व्यवस्था लेके दवाएं लेके हॉस्पिटल में एडमिशन कराना, सारे काम हमने किए और लगातार किए, 3 महीने तक किए। अब बाद में जब महानगर पालिका और सरकार ने इसके बारे में स्वयं अपना भोजन देना और सब चीजें शुरू कर दी, तभी हम लोग उस फील्ड के अंदर बैकफुट पे आ गए। पर आज भी जहां जरूरत पड़ती है वहां सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता दिखते हैं। और ये मुझे लगता है कि एक मुंबई के लिए बहुत बड़े सबक का विषय है कि इतनी बड़ी शहर जो कि सारे महाराष्ट्र को नहीं सारे देश को चलाता है, वहां कोई एम्बुलेंस की
नहीं आने के कारण कोई मर जाए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिले इसके लिए मर जाए। आज की डेट में भी जो सरकार ने या महानगर पालिका ने कोविड के हॉस्पिटल बनाए हैं, उसमें 70% बेड खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी कितनी है मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ, खाने की व्यवस्था कैसी है मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। पर अब समय यह है कि इनको क्रिटिसाइज नहीं करके कोविड के समय के ऊपर हम सब एक हैं। जैसे जब वार होता है तो बांग्लादेश के वार समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सारा भुलाकर कहा था कि इंदिरा गांधी हमारी शक्ति, हमारे नेता है, और सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ था। आज के समय में किसने क्या किया और कोई कौन कहां पर चूका, ये सुनना, ये बोलना ना मेरे लिए अच्छा है, न सुनने के लिए आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी केवल इतना ही है कि मुंबई स्पिरिट जो कि सारी दुनिया में फेमस है, उस स्पिरिट से हम लोगों की सेवा करते रहें। अभी तक हमने की है। आज जहां तक बाढ़ का विषय है, बाढ़ क्या हालत है वो आप सबको पता है, पर हमारे सारे कार्यकर्ता सुबह से रोड पर हैं, और जहां पर भी जो कुछ, चाहे बिजली चली गई है, पानी भर गया है, लोगों को दूसरी जगह पर पहुंचाना है, 2-4 जगह लैंडस्लाइड्स भी हुए, पेड़ भी गिरे हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं सारी मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए या अखबार में छपाने के लिए नहीं है, ये भाजपा के लोगों का कल्चर है। जहां जरूरत होती है वहां पर हम खड़े रहते हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी एक बड़ी संस्था है लोडा फाउंडेशन करके, उसमें आपने क्या क्या सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप क्या क्या काम कर रहे हैं, और आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं कि बाकी लोग भी आके हाथ बढ़ाएं और हाथ जुटाकर काम करें? देखिए, ऐसा है, अभी तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ। मैंने 6 साल पहले बिजनेस में मेरी सारे डायरेक्टरशिप से और शेयर होल्डिंग से रिजाइन कर दिया था। पर मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कबूल करना चाहता हूँ कि आज जो बिजनेस बना है, इसमें मेरा, मेरे परिवार के बच्चों का एक बड़ा रोल है। पर इसके साथ में इस बात का भी रोल है कि समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और समाज ने मेरे पे विश्वास किया, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते में लोग मुझे जानते थे। और इसके लिए मैंने मेरे परिवार में बात की कि भाई, आप यदि समाज के लिए वापस नहीं करोगे तो ये नेचर आपको छोड़ता नहीं है। नेचर बहुत बड़ा जजमेंट करता है। और तभी से हमने आज से 15 साल पहले लोडा फाउंडेशन की स्थापना की। इसमें मेडिकल वैन चलाते हैं, इसमें सीनियर सिटीजन की मदद करते हैं, इसमें विधवाओं के घर पे अनाज पहुंचाते हैं। इसमें हमने, जैसे जो शिरडी जाने वाले लोग हैं उनके लिए भिवंडी के पास में हाईवे के ऊपर एक हमने लोड़ा धाम बनाया हुआ है, जहाँ पे 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था है निःशुल्क। इसी तरह से वसई हाईवे के ऊपर भी एक धाम बना हुआ है, जहाँ पे साधु संतों की रहने की व्यवस्था है, मंदिर है। इसके अलावा हम साल में 2000 बच्चों को शिक्षण वृत्ति देते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, पर वो गिनाने के लिए नहीं है, मन के समाधान के लिए है। और जब तक सपोर्ट समाज का और परिवार का मिलता रहेगा, तब तक हम ये करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। महिलाओं का योगदान, द रेशियो ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में पॉलिटिक्स से भी कम है। आपके कार्यकाल में आप क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे महिलाएं ज्यादा आगे आए, भले वो बिजनेस हो, भले वो पॉलिटिक्स हो? ऐसे आप क्या क्या स्टेप्स लेना चाहेंगे? नहीं, महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती हैं उनको राजनीति में आने का स्वागत करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए, मेरी विधानसभा में 4 नगर पालिका के वार्ड बीजेपी के पास में है, और चारों जगह के ऊपर महिला नगर सेवक है। पुरुष के लिए जो महिलाओं की रिजर्व सीट नहीं है, वहां पर भी महिला नगर सेवक है। और इसलिए, पर वो कोई महिलाओं को केवल चुनावी लड़ाई जाए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, ये भी सच नहीं है, पर वो भी एक कुछ रोल है। इसके अलावा यदि महिलाएं, हमने बहुत सारे बचत गट चलाते हैं, तो महिलाएं जिनको बचत गट के लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो भी हम उनको प्रावधान करते हैं। बिजनेस के अंदर जो महिलाएं काम करना चाहती है उनको भी हम समर्थन देते हैं। पर ये रातों रात में कोई दुनिया बदल जाएगी ऐसी नहीं है। ये हजारों साल से चलता हुआ
एक पद्धति है जिसमें महिलाओं को नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रगल करके बाहर आना पड़ता है, ये सच है। और उस स्ट्रगल करने में समाज यदि सपोर्ट करेगा तो आज नहीं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल के बाद में महिलाएं पुरुष एक जैसे खड़े रहेंगे। पर ये एक जैसा खड़ा होने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि बिजनेस के अंदर साथ में है, कि राजनीति में साथ में है। जहां भी है वो सक्षम है, सफल है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यही उनका उन्नति का एक तरीका बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। काफी लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकल चाणक्य हैं और आप काफी साधारण जिंदगी भी व्यस्त करते हैं। पॉलिटिक्स में जो युवा हैं वो पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए और इलेक्शन में उन्हें टिकट मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो आप लोग देखते हैं? चाणक्य तो हमारे देश में अभी केवल चाणक्य के बाद में मैं यदि किसी को राजनीतिक चाणक्य गिनता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद में माननीय अमित भाई शाह को गिनता हूं। और वो चाणक्य देश के हित में है। चाणक्य के यदि आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा जीवन के अंदर। उन्होंने स्वयं के लिए कभी राजा बनने के लिए कुछ नहीं किया और उनका मन में था कि मैं इस देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश के अंदर देश के लोगों का शासन हो, बाहर के लोग आके देश को लूटे नहीं, इसके लिए राजाओं को इकट्ठा करना, लड़ने के लिए मजबूत करना, जो राजा गलत है उस राजा को हटा के वहां पे धर्म के अंदर आस्था रखने वाले राज्य की स्थापना करना, ये सब उनका जीवन है। मैं चाणक्य नहीं हूं, पर मैं मेरा खेल जम के खेलता हूं। जब भी खेलता हूं तैयारी के साथ खेलता हूं, पूरे मन से खेलता हूं और लड़के जीतने के लिए खेलता हूं। युवाओं को राजनीति में आना है तो इसमें तोड़फोड़ करके या किसी का फॉलो करके या किसी के सामने फोटो ज्यादा छपवा के राजनीति में आया जा सकता है, पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है और दिल जीतने के लिए मन से काम करना पड़ता है। और मन से काम करने के लिए पहले तो आपके मन में वैसे विचार होने चाहिए और फिर आपके पास में स्कोप होना चाहिए काम करने का। पर मुझे लगता है कि ये जिसने चाहा है कि मैं राजनीति के अंदर आऊं उसको किसी ने रोका नहीं है। और जिसमें पात्रता है, अभी हमारे एक वार्ड के अंदर 2000 हमारे बीजेपी के सदस्य रहते हैं, पर नगर सेवक तो एक ही बनता है। विधानसभा के अंदर 25,000 30,000 बीजेपी के सदस्य रहते हैं, पर एमएलए एक ही बनता है। तो इसमें आनंद इसी बात का लेना चाहिए कि मेरी पार्टी का एमएलए बना, मेरी पार्टी का नगर सेवक बना, मैं ही बनूं और नहीं बना तो दुखी हूं। ये भावना छोड़ के राजनीति में काम करने से कभी न कभी कुछ न कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। धन्यवाद। सर, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स काफी में घुसते हैं और जब इलेक्शन में लड़ते हैं तो काफी खर्च वगैरह भी होता है, तो ये सब क्या युवा के हेलो? हाँ जी बोलिए, थोड़ी आवाज कट हो गई, आप रिपीट करिए प्लीज। जी सर। सर, पॉलिटिक्स में जब किसी युवा को टिकट मिलता है तो पॉलिटिक्स को कहा गया है कि काफी खर्च होता है उसमें, तो ये सब क्या युवाएं ही करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आपकी पार्टी भी उसमें सहयोग करती है? नहीं, ये देखिए मिथ है लोगों के मन में कि चुनाव में बहुत खर्चा करना पड़ता है। अभी कोई मुझ पे भरोसा करेगा कि नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, पर जैसे भी एक नाम पढ़ रहा हूँ निखिल व्यास करके, मेरा परिचय का हमारे युवा मोर्चे का कार्यकर्ता है, उसको पता है। जैसे जो बीजेपी के बॉम्बे के लोग हैं, किसी से भी आप पता है, और मेरे मलबाई के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए। इस बार का चुनाव मैंने नॉमिनेशन से लेके काउंटिंग के दिन की माला तक का खर्चा गिन के 12 लाख रुपए में मेरा चुनाव पूरा हुआ। इसमें सब कुछ आ गया और ये ऑफ और ऑन नहीं है, ये एक ही फिगर है। इसमें डिक्लेरेशन अलग हुआ है और कुछ खर्चा अलग हुआ है, ऐसा नहीं है। तो पैसों से चुनाव लड़ा जाता है, पैसों से राजनीति की जाती है, ये सच नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहता हूं, लोग अपने मन से वोट देते हैं और लोग मन से वोट देने से पहले अपने सारे असेसमेंट कर लेते हैं। उनके पास में
अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, और उनका जजमेंट बहुत सही जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपका आपका जो काम है वो बिल्डर्स के एरिया में है। आज के टाइम पे हमारा जो देश है उसमें 70% विलेजेस हैं, 70% गांव हैं। तो लोढ़ा ग्रुप क्या किस नाम से फेमस होना चाहेगा? स्मार्ट विलेजेस या स्मार्ट सिटीज, क्या बनाना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर एक को अपना काम पूरे मन से करना चाहिए। किसी के पास ये काम है कि तुमको फांसी की सजा देनी है, तो जब वो कसाब को फांसी के देने के लिए नंबर लगे तो वो टाइम पर उठकर आ जाए और कसाब को जम के फांसी दे। इसी तरह से किसी का काम रोटी बनाना है, किसी का काम टैक्सी चलाना है, किसी का काम कंस्ट्रक्शन करना है, किसी का काम खेती करना है। जिसके पास जो काम है वो काम मन से करे। कोई काम अच्छा या कोई काम बुरा नहीं होता है। आप यदि गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं तो गाड़ियां अच्छी बनाइए। आप यदि घर बनाने की कंपनी चला रहे हैं तो घर अच्छे बनाइए। अब इसमें स्मार्ट विलेज बने या विलेज के अंदर स्मार्ट सिटी बने, ये फर्क मैं बहुत ज्यादा नहीं आपको बता पाऊंगा, पर मेरी जितनी समझ है, मैंने पहले बताया कि मैं भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूं, पर लोढ़ा बिल्डर्स ने मुंबई से ज्यादा, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जो कि पूरे गांव टाइप इलाके थे, वहां पर ज्यादा काम किया है और वो काम अच्छी तरीके से पूरा किया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी अब ये जो समय चल रहा है कोविड-19 का, इस दौरान में काफी सारे स्टार्टअप्स और एप्स जैसे डिजिटल पार्लियामेंट भी आए हैं। आपके अनुसार आगे जाके ये इस टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल लीडर्स किस जरिए से यूज करना चाहेंगे और क्या-क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए आपके अनुसार? नहीं, आपका ये डिजिटल पार्लियामेंट का जो आपका कंसेप्ट है और आप जो ये कर रहे हैं, ये बहुत आगे जाएगा। और बहुत आगे जाने के लिए आपको कोई कोविंद कब खत्म होता है इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोविंद जल्दी खत्म हो जाएगा, पर आपका लंबा चलता रहेगा। उसका रीजन ये है कि लोगों को अच्छी बात समझने सुनने का बहुत मन में इच्छा रहती है। और आप जो कर रही हैं या आपकी संस्था जो कर रहे हैं, वो किसी को आप पेंट करके नहीं करते हो। अभी मैं जैसा हूँ, आप मुझसे पूछती जा रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ। मुझसे इसके पहले आपके यहाँ से कोई किसी ने बात नहीं की। एक दिन फोन आया था और इसके बाद भी शायद कोई, मुझे पता नहीं कि मेरे से कोई कुछ बात करेगा कि नहीं करेगा, पर आपने आज मेरा इंटरव्यू नहीं किया, ऑपरेशन किया, एक्सरे किया, लोगों के सामने मुझे पेश किया, तो मुझे अपने में जो कमियां हैं वो भी एनालाइज करने को मौका मिला और लोगों को भी समझ में आया कि ये मंगल प्रभात लोढ़ा वास्तव में क्या है। ये जब डायरेक्ट लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो और लोगों को फ्री एंड देते हो कि पूछो, और हमको जब डायरेक्टली जवाब देना पड़ता है तो हमारी असलियत सामने आती है। मुझे लगता है कि आप इसको कंटिन्यू करिए। इसमें क्या क्या आपको टेक्निकली ऐड करना चाहिए उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि सोच बहुत अच्छी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी एक 3 सवाल है, फायर साइड क्वेश्चन करके हैं। आप 5 बार, अभी आप 6ठी बार एमएलए बने हैं, तो अगले बार आप एक एमएलए बनना चाहेंगे अगले इलेक्शन में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर? स्टेट में रहना चाहेंगे सेंटर? पार्टी टिकट देगी तो एमएलए का चुनाव ही लड़ूंगा। मुझे दिल्ली जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। ओके सर। सर आपके जीवन कार्यकाल में आप लॉयर थे, आप रियल एस्टेट डेवलपर और आप एक पॉलिटिशियन हैं अभी। आपको तीनों कार्यकाल में से सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा कार्यकाल कौन सा लगा? सबसे अच्छा कार्यकाल बचपन, कोई टेंशन नहीं था। अब उसके बाद जो कुछ हुआ टेंशन ही टेंशन में होता जा रहा है। पर यस, आई एंजॉय पॉलिटिक्स मोर देन बिजनेस एंड माय लीगल लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सर। सर बम्बई पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए या पोथोल फ्री होनी चाहिए या करप्शन फ्री होनी चाहिए? तीनों चीजें आपकी सही है, पर ये होने वाला इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महानगर पालिका का कामकाज है उसमें हम सबको मालूम है कि जो सारा हम टैक्स भरते हैं उसका 80% उनका पगार में ही चला जाता है। इसलिए कब क्या होगा मुझे पता नहीं। ये मुंबई के लोगों का विषय है कि मुंबई के लोग
आने वाले समय में क्या चूज करते हैं। ये सब करने के लिए मुंबई के लोगों को, खास करके उन लोगों को जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको अपना निर्णय लेके आगे आना पड़ेगा। जो सो कॉल्ड एनजीओ बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो पब्लिक वाच रखने के लिए एनजीओ बने हैं और उनका एजेंडा और कुछ रहता है, वो ज्यादा समय तक टिकते भी नहीं है और वो मुंबई को कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए। यदि रियल कोई एनजीओ बने, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमको भी क्रिटिसाइज करिए, जम के क्रिटिसाइज करिए, क्वेश्चनिंग करिए, सजेशन करिए, आप हमको गाइड भी कर सकते हैं, यंग है तो भी। पर ये जो आपने शुरू किया इसको छोड़ना मत, बिकॉज वी ऑल ओव टू मुंबई। मुंबई ने आपको, मेरे को, सबको बहुत दिया है और अभी मुंबई मांग रही है। मुंबई बहुत दुखी है, इट इज वीपिंग, इट नीड्स हैंड्स टू वॉश द टीयर्स। लेट अस ऑल गेट टुगेदर टू डू समथिंग फॉर द सिटी। थैंक यू। थैंक यू सर। इसी मैसेज पे मैं बाकी लोगों को भी निमंत्रण देना चाहती हूँ जो अपने सवाल रखना चाहते हैं। जस्टिन, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि अभी महाराष्ट्र के जो एमएलए, जो पार्टी है सर, हमारे अभी कोalition गवर्नमेंट है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का। सर, अभी इस कोविड सिचुएशन में हमें लीडरशिप का कोई फिक्स्ड फिगर नहीं मिला है सर, कि जैसे कि ना तो शरद पवार या अजित पवार का लीडरशिप है, ना तो अपने मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे का लीडरशिप है, ना तो बाला साहेब थोराट का है। सर, हमें कोविड-19 का सिचुएशन कैसे हैंडल करना था लीडरशिप के साथ, आपका व्यू चाहिए सर मुझे, कि अलाउड होना चाहिए कि भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट का लीडरशिप बेटर होगा? नहीं, ऐसा है, मैंने पहले ही बताया कि ये समय पॉलिटिकल कमेंट्स का और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म्स की लाइन से ऊपर उठकर काम करने का है। अभी सरकार तो जो उनकी बन गई है, अब इसके बाद के अंदर आज उनकी सरकार ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, ये आज बोलने का समय मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। जब इस कोविड से बाहर निकल जाएंगे तो बोलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर आप लोगों ने बुलाया तो फिर मन से खुलकर बात करेंगे। आज तो हम ये कहेंगे कि किसी भी तरीके से मुंबई को बचाओ। मुंबई शहर आज तकलीफ में है, सारे भारत में नहीं दुनिया के अंदर मुंबई कोविड केसेज में नंबर 1 पे चला गया है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, भयानक तरीके से बढ़ता जा रहा है। और मैं इस पे ऑनेस्टली पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज जो लोग भी हैंडल कर रहे हैं उनको ही हैंडल करना है। आप और मैं ज्यादा कुछ सरकार में बैठ के अब सरकार ही हैंडल करेगी, हम कुछ ज्यादा सपोर्ट करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लेट अस डू दैट पार्ट ऑफ आवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ज़ारा, आप पूछना चाहेंगी? बेटा कितने लोग हैं टोटल? मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बताएंगे मुझे टोटल कितने लोग हैं इसमें? नॉट मच पीपल सर, यहाँ पे no sir, we are having some questions beforehand, so some of them we have invited over here, and some I have asked you already. No, just I want to know how many people are watching it. There are about 300 people who are watching it, sir. Good number. Thank you. तो सर, इसी आपका हम सबके लिए, युवाओं के लिए कोई मैसेज ये बेटा कि यदि तालाब का कचरा साफ करना है तो किनारे पर बैठकर साफ नहीं होगा, तालाब में उतरकर साफ करना पड़ेगा। ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, जो भी आप लाइक करते हो। बीजेपी में आओ, बीजेपी में वेलकम हो, शिवसेना में जाओ, शिवसेना में जाइए, बट बी इन इट। आपकी डेस्टिनी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में, वेदर वी लाइक इट और नॉट। डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वही हमारे राजा होते हैं और वही देश को गवर्न करते हैं। तो डेमोक्रेसी ने आपको राइट भी दिया है कि आप राज परिवार में नहीं जन्मे हो फिर भी आप राजा बन सकते हो। बी ज्वाइन द पॉलिटिक्स, जिसको भी इंटरेस्ट हो। कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब इलेक्शन ही लड़ना होता है। आप बनो, बीजेपी का मेंबर बनो, बीजेपी की एक्टिविटी में शामिल हो, हमारी गलतियों पे हमको रोको, हमारी अच्छी बातों पे हमारे साथ में काम करो, पर कम ज्वाइन फॉर द सेक ऑफ द सिटी, फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। थैंक यू।
सर आपके साथ काम करने के लिए हम सब कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा लाइफ बहुत सिंपल है। आप मेरा मोबाइल नंबर, जब से मोबाइल निकला मेरा एक ही नंबर है और वो पब्लिक देने में मुझे कभी और नहीं लगता। खाली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप SMS कर दिया करें, मैं आपको कॉल कर लूंगा। मेरा नंबर 9820021592 और बीजेपी का ऑफिस वसंत स्मृति दादर में है। हर विधानसभा में बीजेपी का ऑफिस है। पर मेरा फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप केवल पॉलिटिकल नेताओं के भरोसे छोड़कर ये तालाब की गंदगी नहीं सुधार पाओगे। आपको भगवान ने स्ट्रेंथ दी, आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, तो यू आर मोर देन ए नॉर्मल गर्ल। सो कम ज्वाइन इट, टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स। आप कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में करेंगे या कोई भी जो आपके आसपास में बीजेपी का नगर सेवक हो, MLA हो, बीजेपी का अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, उसको बताएंगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू एनरोल यू एज ए मेंबर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया इतने बिजी स्केड्यूल से, जबकि पूरा मुंबई डूबा हुआ है और सब लोग कोविड से भी परेशान हैं। Thanks for giving the opportunity by heart. Hope to meet you again. Thank you, sir. Sure, sir. Thank Sure. you, sir. Thank you. Can I leave now? Yes, sir. Thank you.